ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ 25.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁਝ ਜੰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੜਾ ਅੜਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ कूड़ा करकट अपना सिटना सी गार्बेज डंप के उत्ते तो सानू डंप बनाना चाहते हो। हालांकि 20 सालों से ज़्यादा हो गए कनाडा को इस पे काम करते हुए। इसमें अलग अलग प्रोविंसेस में, कुल कनाडा के 9 प्रोविंसेस में अब लोकल लॉज हैं, लेकिन कोई फेडरल लेवल पे कोई अभी तक लॉ नहीं है ई वेस्ट को लेकर के। पर मनी जी मेरा ख्याल है भी जे तुसी फर्ज करो आधुनिक नहीं लेंदे, नवा नवा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ नहीं लेंदे, तो जानबूझ के ਤੁਹਾਡਾ फोन स्लो कर देंगे ना सिस्टम। जो यूबीसी की स्टडी थी उसमें उन लोगों ने ये कहा था कि इसको कम करने का, ई वेस्ट फुटप्रिंट कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि जो कंपनीज हैं ये नए नए प्रोडक्ट्स बनाना बंद करें। अच्छा, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਥੀਅਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਟਰੀ ਆ ਵੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਏ ਬੈਕ ਕਰ वो करेंगे। हाँ, वही लो। ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। The Harjinder Thin Show। ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਏ? ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਇੰਕ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ 25.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੁਰੰਮਤ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈੱਲਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਈ ਵੇਸਟ ਦੇ 198 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-4 ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁਝ ਜੰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੜਾ ਅੜਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜੰਕ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ। ਵੈਂਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਮਨੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक जंक ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक जंक जैसे कनाडा पिछले 20 सालों से इस पे काम कर रहा है जी, कि यहाँ जितने एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, इन्होंने जो है कि कनाडा को अच्छे से अपना ई वेस्ट डिस्पोज करना चाहिए। कि ये 2000s के बाद दरअसल ये एक रिकग्नाइज कैटेगरी बना कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर्स बढ़ गए दुनिया में, ये सारे गैजेट्स आ गए, तो ये रिकग्निशन आया। लेकिन हालांकि 20 सालों से ज़्यादा हो गए कनाडा को इस पे काम करते हुए। इसमें अलग अलग प्रोविंसेस में, कुल कनाडा के 9 प्रोविंसेस में अब लोकल लॉज हैं, लेकिन कोई फेडरल लेवल पे कोई अभी तक लॉ नहीं है ई वेस्ट को लेकर के। स्टडीज़ का अगर हम देखें तो 2000 से अब तक तकरीबन 20-22 सालों में सिर्फ 6 स्टडीज़ कनाडा केंद्रित रहे हैं। एक जो आप जिस रिसर्च का हवाला दे रहे हैं वो एकदम हाल ही में आया है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का। एक यूबीसी का रिसर्च थोड़ा पुराना है, वो मैंने पढ़ा। इस पे भी उन लोगों ने काम किया था। तो रिसर्च सिर्फ टोटल 6 हैं कि कनाडा का वेस्ट कहाँ जा रहा है। लेकिन बढ़ रहा है क्योंकि हम सारे आजकल, और नॉर्थ अमेरिका में खासकर, नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है दुनिया का। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप सेल फोन्स हों, चाहे टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी ऐसा गैजेट हो, ख़रीदना बड़ा आसान है। हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है एक आईफोन लेना। लेकिन यहाँ पे बायबैक स्कीम्स अच्छे हैं, आपको 0% इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा, और हर 2 साल में हमने देखा है औसतन। नवा कर देंगे हो? हाँ, फ़ोन आपने लिया, 2 साल लगा। अच्छा, आईफोन जैसे मेरा है 12, तो 12 के बाद 13 आ गया, मेरी वाइफ का 13 है, तो दोनों में फ़ोन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि मेरा कैमरा 2.5x पे जूम होता है, उसका 3.5x पे जूम होता है, लेकिन अदरवाइज फंक्शनैलिटी में कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है। आईफोन 14 में भी इतना नहीं है। लेकिन पर मनी जी, मेरा ख्याल है भी जे ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ। नहीं, वो वैसा तो पता नहीं, कोई ऐसा हमने तो देखा नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोई तंत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक पीयर प्रेशर है सर, ये बहुत बड़ी बात है कि एक, क्योंकि इसमें कुछ साइको एनालिसिस जो हुआ है, साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि अब एक सोसाइटल प्रेशर बन गया है कि जिसको अच्छे से चलाना आता भी नहीं, किसी हाई सोसाइटी में गया, हाई सोसाइटी की बात नहीं है दरअसल, कि आप पूरे पीयर ग्रुप में आप जहाँ पे घूम रहे हैं, ऑफिस में देखा कि 4 लोगों के पास आईफोन 14 है, आपका अभी भी आईफोन 11 है ना, तो हम जाएंगे भाई, क्योंकि वो सारे आप चाहे फाइडो चले जाए, रॉजर्स चले जाए, 14 वाले भी कट के मेज के सामने रख देंगे है ना, 3 कैमरा है, 2 कैमरा है ना, ये सारी चीजें हैं। तो जो यूबीसी की स्टडी थी उसमें उन लोगों ने ये कहा था कि इसको कम करने का, ई वेस्ट फुटप्रिंट कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि जो कंपनीज हैं ये नए नए प्रोडक्ट्स बनाना बंद करें, कि जिसमें एक छोटा सा ही पैच लगा है, जिसमें एक 2.5x और 3.5x का जूम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, लेकिन वही यूएसपी है। तो इसके चलते जो है कंज्यूमरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंज्यूमरिज्म। तो इसको कम करने का शायद एक ये तरीका है। दूसरा है पॉलिसी लेवल पे, कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का मसला ये है कि यहाँ पे तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बड़े सख्त हैं,
लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही जो है बाकी आप जो अफ्रीका में चले जाएं, एशिया में चले जाएं, जैसे आपने फिलीपींस का हवाला दिया, फिलीपींस के साथ एक बहुत बड़ा ही इंसिडेंट हो गया 2013 में। 50 कंटेनर्स गए थे कनाडा से ई वेस्ट के, जो मनीला में वहाँ पे आए, उन्होंने वापस करते। हाँ। तो एक 2015 में भी केस हो गया था, सरी का एक कंपनी, इसके खिलाफ जो है केस हो गया। पीनल प्रोविजंस बीसी गवर्नमेंट ने ये लोग लेके आए थे क्योंकि चाइना भेजा जा रहा था। अब सरकारों को तो पता होता है कि कहाँ पे क्या जा रहा है बहुत बार, लेकिन चीज़ें मालूम होने के बावजूद वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ई वेस्ट जितना आपका सरदर्द कम हो किसी और का बने उतना आपके लिए आसान है। तो ये हकीकत है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि सरकारों में ये है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਈ ਵੇਸਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। पर ਜਦੋਂ ਉਹ क्रश करके भेज देंगे ਉਹਦਾ कुछ नहीं बनता फिर। हाँ, जैसे ई वेस्ट डिसमेंटलिंग का वो एक है कि अब जैसे सारे कंपनीज पे ये आयत कर दिया गया है कि आप जो है एक बाय बैक प्रोग्राम रखेंगे, कि अब जैसे आप एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हैं, उसमें आपको जब आप ख़रीदते हैं उसी टाइम पे जो उसका जो पैकेजिंग है उसमें ये आ जाता है कि इसको आपको कैसे डिस्पोज करना है, कि उसी एप्पल सेंटर में जाके जो है आप अपना वो एक वहाँ पे लगा होता है एक बॉक्स कि आप वहीं पे डंप करेंगे। हाँ, अगर आपके पास वक्त है तो आप करेंगे, नहीं तो आप जैसे रिटर्न इट करके एक है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे। तो ऐसे कुछ 8-9 एजेंसीज हैं जो ये कलेक्ट करते हैं, जो और उसका प्रॉपर डिस्पोजल उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने खुद वहाँ ना फेंकने के बजाय आपने डंप में डाल दिया, तो फिर वो अगर लैंडफिल में चला गया तो वहाँ पे एक थ्रेट पैदा हो जाता है कि एनवायरमेंटल पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये भी है कि आपने बैटरी डिस्प्लेस वहाँ पे डिस्पोज कर दिया लैंडफिल में, कैडमियम निकला उससे, लिथियम है उसमें। हाँ, लिथियम के बैटरीज हैं, जो कैडमियम के बैटरीज हैं, गाड़ी के बैटरीज आप देखिएगा तो वो हैं। लीड पॉइजनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेड पॉइजनिंग। हाँ, तो लेड पॉइजनिंग की वजह से ये होता है, फिर आपका कैंसर वगैरह ये फैलता है। और जो कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होता है, जहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज टाइट नहीं है, वहाँ पे आप केसेस बहुत ज़्यादा देखेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ हैं। अच्छा शर्मा जी, हाले तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਜਾਂ एनवायरमेंटल ग्रुप्स कंसर्नड ने ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣੀਆਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਪ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, फिर वो कितने जाएंगी इन्हीं बैटरियाँ? हाँ, तो इसके जो अलग अलग इसके डंपिंग साइट्स हैं, मतलब जो डिस्पोज ऑफ जब जैसे करते हैं कि आप ओपन फर्नेस पे इंसिनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जो गैसेस निकलते हैं जैसे बाकी इंसिनरेटर्स होते हैं वहाँ पे आप नहीं डाल सकते। इसके ई वेस्ट के अलग होते हैं हमेशा, तो इसीलिए सेग्रीगेशन एट सोर्स आप सारे सोसाइटीज़ में आप अभी देखेंगे, या फिर हमारे सामने ऑफिस के सामने जो डब्बे लगे हुए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि आपका वेट वेस्ट इधर है, ड्राई वेस्ट इधर है, डिस्पोजेबल रिसाइक्लेबल के लिए अलग है। बिल्डिंग्स में भी ऐसे होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे तो ये है कि अब धीरे धीरे जैसे इतना ओपनली, मैंने कहा कनाडा में हालांकि फेडरल लेवल पे कोई लॉ नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे यहाँ पे लॉज हैं, इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसीलिए हर सोसाइटी में आप अपार्टमेंट्स में आप जाएंगे, बिल्कुल, तो आपको खुद ही जो है सेग्रीगेट करके डालना होता है। हौली हौली सिटीजन भी आदत पै जाती है। हाँ, तो ये आदतें जो हैं ये पैदा की गई हैं लोगों में, और ये एक डिसिप्लिन अभी पिछले 20 साल का काम है ये। अच्छा, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਟਰੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर वही बाय बैक कर वो करेंगे। हाँ, वही रिसाइकल नहीं होंगी।
हाँ, तो वो रिसाइकल करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कंपनीज में जैसे EPR प्रोग्राम है हर कंपनी का, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, वो टेस्ला के साथ भी है। तो इन सारे कंपनीज को जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टेलीविजन एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो ये LED टीवीज है। पहले तो CRT मॉनिटर्स होते थे, कैथोड रे ट्यूब वाले, इसके डिस्पोजल में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब तो खैर वो फ्लैट स्क्रीन आ गए, इसके LED वगैरह आ गए, तो ये उस टाइम के टीवी से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है। तो इन सब पे जैसे 92 में बेसल कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें सारे सिग्नेटरीज है, कनाडा भी एक सिग्नेटरी है। तो ये तो उस पे जो है, इस पे जिम्मेदारी बनती है, कनाडा इज लीगली बाउंड कि ये ई-वेस्ट डिस्पोजल जो है ये ढंग से करेगा। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके खुद के टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर निकलते ही वो सारे कानून काम करना बंद कर देते हैं कि किसी और कंट्री पे आप भेज रहे हैं, जो कि फायदेमंद साबित होता है कि आपने उसको पैसे दे दिए, आपका झंझट खत्म। जैसे चाइना में जैसे हुआ था, साउथ चाइना में एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है वहाँ पे ई-वेस्ट का। अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ के कंपनीज जो है वो अपना छोड़ देते हैं, जहाज में चले गए, इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग होती नहीं है। ਸੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੰਕ ਬਾਰੇ? हाँ, जंग के लिए जो है, अब जैसे देखिए जो फिगर्स हैं वो काफ़ी वरिंग है। इस स्टडी के मुताबिक कहा गया है कि कनाडा ने 2020 में 1 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट किया। 2013 में जो स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आंकड़े हैं जो मैंने देखे हैं, कनाडा ने 10 साल पहले की बात है, औसत 224,000 टन्स कनाडा ने जनरेट किया था, कि ये 10 साल में 8 लाख टन हमने ज़्यादा जनरेट कर लिया। नहीं, तो वो इसलिए हो रहा है कि अब आपके गैजेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अलग अलग किस्म के। 2 साल में आईपैड छोड़ दिया, 3 साल में फ़ोन चेंज कर दिया। 3 साल तो खैर वो एक एक्स्ट्रा ज़्यादा स्ट्रेचेबल लिमिट है, यूजुअली साल 2 साल में जो चेंज कर रहे हैं। आपके एयरपॉड्स आ गए, टेलीविजन नया डील, प्रिंटर्स 2 साल से ज़्यादा एक्चुअली चलते ही नहीं है। पहले एक जैसे UBC की स्टडी में कहा गया था कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड का 2005 में उसका एवरेज लाइफ स्पैन था 4.5 साल, 2020 में 2 साल है। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ, सारे सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि कंजम्पशन कम करें, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो है ई वेस्ट भी जनरेट ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये कि डिस्पोजेबल जो डिस्पोज करने के जो तरीके हैं उनको ढंग से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर जो है अच्छा ये सेलफोन आ गया, मैंने बाकी कूड़े के साथ इसको डंप कर दिया नीचे, कि जो सॉर्ट आउट करने के लिए आएगा वो फिर परेशान हो जाए कि जो मेरा फ़ोन का वेस्ट है, जो मेरा पुराना कीबोर्ड है या माउस मैंने फेंक दिया है, वो बाकी कूड़े के साथ में ना डालें। उसके जो अलग उसके जो है वो सेग्रीगेशन एट सोर्स, वो एक डिसिप्लिन बना ले खुद में, कि ताकि सही लोगों के पास सही चीज़ें पहुंच पाएँ, कि जिनके पास ये काबिलियत है कि इसको डिस्पोज कर सके। तो ये मजाक की बात नहीं है कि ई वेस्ट को मतलब वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कि प्लास्टिक एक पहले मसला था, प्लास्टिक से भी बड़ा मसला ये अब ई वेस्ट का बन गया है। बिल्कुल। तो और ऐसे मसाइल पैदा होते रहेंगे अगर हम खुद नहीं केयरफुल होंगे। तो सेग्रीगेशन एक एट सोर्स। दूसरा है कि हर 2 साल में अपना फ़ोन ना बदलें। अगर टूटा नहीं है बिल्कुल तो सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट तो आपको मिलता ही रहेगा। तो ऐसे बड़े फीचर्स के लिए जो है 12 मेगापिक्सल का आपने फ़ोन ले लिया, उसका कैमरा है, 14 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आपके अब पिक्चर्स अच्छे आ जाएंगे। इसके लिए फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपने एयरपॉड्स ले लिए, 3-4 साल आराम से चलाइए। हर सितंबर में एप्पल का अपडेट आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही प्रोडक्ट आप लें। तो ये चीज़ें जो है, ये कंज्यूमरिज्म जो है फैल रहा है दुनिया में, इसका नतीजा है। लेकिन हौली हौली जो माइंडसेट चेंज हो गया कि एनवायरनमेंट प्रति बंदा सिंसीयर है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। हाँ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ बिल्कुल ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾएगा। बिल्कुल काबू होगा। और जैसे आप ई वेस्ट को बंद नहीं कर सकते दुनिया भर में। आप जैसे आप टीवी आप लेंगे, आपने 4 साल चलाया 5 साल चलाया, लेकिन अल्टीमेटली वो वेस्ट बनेगा। उसको हम नहीं कम कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। कि एक एटीट्यूड चेंज, जैसे आपने कहा कि अच्छा हर 2 साल में नया फ़ोन आ गया, मतलब ये नहीं है कि बड़ा रईस है या जो है अप टू डेट है। इसका मतलब ये है कि ये He is बंदा irresponsible. ही इज इररिस्पॉन्सिबल, ही इज इनसिंसियर। ये शो ऑफ करने का जो है इसका तरीका है। तो ये माइंडसेट अगर बन गया तो मेरे ख्याल से वो कंज्यूमरिज्म में फायदा ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਡੰਪ ਕਰਨਾ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी। अब जैसे यहाँ पे अब जैसे गर्मी आ रही है, गर्मियों में पिछले 2 सालों में हमने क्या देखा, कनाडा में खास करके वैंकूवर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो कंपनीज में क्या देखा कि लोगों ने एसीज खरीदे। एसी में रिटर्न पॉलिसी है 2 महीने का, कुछ कंपनीज के, एलजी में। तो लोगों ने क्या किया, नए एसीज खरीदे, वो गर्मी के 1-1.5 महीने उन्होंने चलाए, उसके बाद रिटर्न कर दिया। अब वो कहाँ जाएंगे, अब उसको डंप तो आप कर नहीं सकते। तो कंपनीज ने फिर वहाँ पे एक पॉलिसी उन लोगों ने इंक्लूड की, मतलब नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया कि वो बायबैक करेंगे, उसको थोड़ा रिपेयर करके अगले सीजन में फिर से चलाएंगे, कम दाम में आपको मिलेगा। तो ये एक तरीका है। तो ਬਹੁਤ खपत ਮਿਹਰਬਾਨੀ कम ਤੁਹਾਡੀ, करने ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। का। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। ਥੈਂਕ ਯੂ।